Hello students, in this video I will explain the circular queue, what is a circular queue and what are the limitations in linear queue and why we use a circular queue. So first we understand the application of queue. So there are two applications. So queues are also useful in time sharing operating system where many users shares the CPU simultaneously. So whenever a user requests the CPU to run a particular program, the operating system adds the request. Okay. So by converting the program into a process and assign the process ID. So this process ID is then added at the end of the queue. Okay. Where jobs are already waiting for its executions. So whenever the CPU is free, it executes the job that is at the front of the job of queue. Okay. And the second application is another application. Queue is also used in shared input output device. Each device maintain its own queue of request. Example is print queue on a network printer, which queues a print job issued by various users on the network. The first print request is the first one to be processed and new print requests are added at the end of the queue. So these are the application. इसके अलावा भी बहुत सारी applications हैं queue के, okay, जो कि software में हम use करते हैं. Okay, circular queue. So what are the limitations of linear queue? In linear queue, there is a lack of memory utilization. Okay. So linear queue के केस में आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि मेमोरी का फुल यूटिलाइजेशन नहीं है. So that is, if linear queue is full and you create some space after deletion of some elements from it, now you want to insert a new elements into it. Okay, still it will shows a message queue is full. आपने कुछ एलिमेंट्स को इंसर्शन कोशिश की, ओके, क्यू इज आपका फुल हो चुका था, उसके बाद आपने कुछ आइटम डिलीट किए, तो इट मीन्स आपका मेमोरी तो एम्प्टी हो जाना चाहिए, लेकिन मैसेज अब भी आपका डिस्प्ले होगा, सो क्यू इज फुल. So we can overcome above problem by using a shifting element, okay, from right to left one position. Suppose अगर आप कुछ आइटम्स को डिलीट करते हो, उसके बाद में स्पेस क्रिएट कर इंसर्शन करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप अपने सारे डेटा को शिफ्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट पोजीशन आफ्टर ईच डिलीट ऑपरेशन. But above approach is little bit time taken because of shifting operation. Okay, so इसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है. So therefore the concept of circular queue have come up. It can utilize the memory cells with efficient manner. So come to the definition part of circular queue. A circular queue is an ordered list in which all insertions take place at one end, the rear end, while all deletions take place at other end, the front end. And queue is also known as first in first out list. Okay, so there are some elements a1 a2 a3 a4 a5 and I want to insert these elements into a queue. तो rear end के ऊपर insertion होता है और deletion जो है front end से होता है. So here we initialize rear and front at the same point at insertion of a1. Okay, आफ्टर सेकेंड इंसर्शन रेयर को आप इंक्रीज करेंगे बाय 1. ओके, सो रेयर will advance to next location and insert another item. Okay, now insertion of third item, रेयर को आपने एडवांस किया और इंसर्शन किया. तो इस तरीके से जब जब आप इंसर्शन करते हैं, जस्ट लाइक ए लीनियर को, यहाँ पे भी रेयर को आप एडवांस करेंगे. ओके, लाइक दिस वन. ओके, नाउ another item that is a5. Now I want to delete item from a circular queue. So the restrictions on queue is that A1 is the first letter to be removed and queues are also known as first in first out list.
सो डेफिनेटली आप यहाँ से A1 को डिलीट करेंगे और फ्रंट को एडवांस करेंगे। नेक्स्ट राइट नाउ डिलीट A1 और फ्रंट नेक्स्ट लोकेशन पे आएगा। राइट नाउ अब सर्विस किसकी होने वाली है? A2 आइटम यहाँ से डिलीट होगा। सो A2 इज डिलीटेड फ्रॉम योर सर्कुलर क्यू एंड फ्रंट को आपने एडवांस किया। ओके, A3 को भी अगर हम डिलीट करते हैं तो फ्रंट आपका नेक्स्ट लोकेशन पे आएगा। नाउ एट दिस मोमेंट अगर मैं इंसर्शन करता हूं तो अगर ये लीनियर क्यू होता तो मेरा मैसेज आएगा क्यू इज फुल, बिकॉज रेयर आगे जा ही नहीं सकता। सो अब हम रेयर को एडवांस कैसे करेंगे? कुछ मैकेनिज्म लगाएंगे। इधर रेयर को 0 इनिशियलाइज करेंगे चेक करने के बाद में, या समथिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर। इन द केस ऑफ लीनियर क्यू देयर इज सो सिंपल ऑपरेशन। आप सिर्फ क्या लिखते थे? रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1। ओके, तो सपोज आई वांट टू इंसर्ट अनदर आइटम। ओके, मैं 5 को इंसर्शन करना चाहता हूं, तो रेयर को मैं एडवांस करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो रेयर का वैल्यू तो आपका अपर बाउंड से आगे निकल जाएगा। सो द अर्थमेटिक ऑपरेशन, अब हमें चाहिए क्या है कि आपका जो इंसर्शन है वो नेक्स्ट लोकेशन आपका कहां पर आना चाहिए? आपका सर्कुलर वे में घूम करके 0th लोकेशन के ऊपर आना चाहिए। सो क्या मॉडिफिकेशन करा जाए इस अर्थमेटिक स्टेटमेंट में? सिंपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू r प्लस 1 मॉडुलस ऑपरेटर मैक्स, वेयर मैक्स इज द साइज ऑफ एरे। सो राइट नाउ द साइज ऑफ एरे इज 5। ओके, सो आप देख सकते हैं अगर आप रेयर को अपडेट करेंगे यहाँ पर, दैट इज 4 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो दैट इज 5। मॉडुलस ऑपरेटर द साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे आपका कितना है? दैट इज 5। सो 5 डिवाइडेड बाई 5, रिमाइंडर कितना आएगा? दैट इज 0। तो रेयर जो है वो आपका यहाँ से नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर जाएगा, दैट इज 0th लोकेशन के ऊपर। राइट नाउ रेयर इज हियर। ओके, और अपडेटेड रेयर लोकेशन के ऊपर आप वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो, दैट इज a ऑफ रेयर इज इक्वल टू डिजायर्ड वैल्यू। सपोज मुझे 5 का इंसर्शन करना है तो 5 जो है वो आपका कहाँ पे जाएगा? a ऑफ 0 के ऊपर, बिकॉज रेयर इज इक्वल टू 0। a ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब नेक्स्ट इंसर्शन करना है तो आप रेयर को एडवांस करेंगे। तो आपका जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि इसके हिसाब से तो आप जो है 4 को अगर 1 ऐड करते तो 5 पे चले जाते हैं। बाकी अंडर द लिमिट अगर कोई वैल्यूज को आप इंक्रीज करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट सेम रिजल्ट्स आएंगे जो इसके हैं, और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो सेम रहने वाले हैं। चलिए मैं 6 का इंसर्शन करता हूं। तो सबसे पहले रेयर को अपडेट करूंगा। सो रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉडुलस ऑपरेटर मैक्स। सो राइट नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेयर? अपडेटेड रेयर का वैल्यू है दैट इज 0। 0 में आपने 1 ऐड किया और डिवाइड किया 5 से, सो रिमाइंडर विल बी 1। राइट, सो रेयर का वैल्यू आपका 1 है। नाउ अपडेटेड रेयर लोकेशन के ऊपर आप वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, सपोज 6 को। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? दैट इज a ऑफ 1। a ऑफ 1 इज इक्वल टू 6। तो रेयर पहले आपने एडवांस किया नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर, रेयर का वैल्यू 1 आता है और आपने 6 का इंसर्शन इस पोजीशन के ऊपर किया। ओके, सो अब ये रेयर को हम जब एडवांस करेंगे तो सिंपल रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 नहीं करके हम करना है रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉडुलस ऑपरेटर मैक्स। सो दिस इज द वन थिंग। नाउ व्हाट इज द ओवरफ्लो कंडीशन? अब आप देख सकते हैं कि आपने आइटम्स को इंसर्ट किया 4 एंड देन 5 एंड देन 6। अब आप इंसर्शन नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द ओवरफ्लो कंडीशन? अगर आप देखेंगे कि आपका क्यू जो है वो फुल है तो आपने कैसे करना है? आप सिंपल रेयर में 1 ऐड करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर मैक्स करके कंपेयर करेंगे किसके साथ में? फ्रंट के साथ में। अगर ये कंडीशन आपकी मैच होती है तो आपका क्यू जो है वो आपका फुल होगा। नाउ चेक हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेयर? दैट इज 1। 1 प्लस 1 मॉडुलस ऑपरेटर 5 कंपेयर विथ फ्रंट दैट इज 2। अब मैं 2 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 2 ही आएगा और इट इज मैच। सो ये कंडीशन यहाँ पे परफेक्ट हो गई। अब आप कहेंगे इतना लंबा आपने क्यों कैलकुलेशन किया? ये तो सिंपल रेयर को हम 1 ऐड करके भी हम मैच कर सकते थे, लेकिन आप पहले की कंडीशन चेक करिए। सपोज आपके एरे में फ्रंट आपका अपनी पोजीशन पे, दिस इज 0th लोकेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन 4। आपने सपोज आइटम्स डाले दैट इज 5, 6, 2, 8 एंड देन 4। नाउ फ्रंट इज हियर
फ्रंट का वैल्यू कितना है, दैट इज 0, और रेयर आपका इस पोजीशन के ऊपर है, दैट इज 4। तो अगर मैं सिर्फ रेयर में 1 ऐड करके फ्रंट से मैच कराऊंगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि रेयर में 1 ऐड करूंगा दैट इज 4 + 1 5 होगा और फ्रंट के साथ मैच नहीं होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज रेयर, रेयर इज 4 + 1, ओके, व्हाट इज द साइज ऑफ एरे, दैट इज 5, दिस इज द मॉडुलस ऑपरेटर, और आप मैच किसके साथ में कर रहे हैं, फ्रंट इज 0। तो 5 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका क्या आने वाला है, दैट इज 0, और 0 0 के साथ मैच कर गया। सो इन दिस केस सर्कुलर क्यू इज फुल, और इन दिस मोमेंट इज आल्सो सर्कुलर क्यू इज फुल। तो दिस कंडीशन इज फॉर ओवरफ्लो। सो इंसर्शन ऑफ A6, सो रेयर एडवांस होकर के अपनी प्रीवियस पोजीशन के ऊपर जाएगा, 0th लोकेशन के ऊपर जाएगा, एंड देन A6 विल बी इंसर्टेड in this position. Now another item, suppose I want to insert A of 7 into this circular queue, then rear will advance and A7 will be goes to in this location. Okay, so this is the scenario of circular queue. Now I want to delete A4. Okay, आपने एक आइटम को डिलीट किया, I want to delete values. Okay, आपने पहले सर्कुलर वे में आपने कुछ इंसर्शन किया, दैट इज 5 6 का एक आइटम को डिलीट किया, फ्रंट आपका नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर है, राइट नाउ फ्रंट इज 3 एंड रेयर इज 1। सो डेफिनेटली अगर एक आइटम को आप डिलीट करेंगे तो आपका 8 यहाँ से डिलीट होगा और फ्रंट जो है वो नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर एडवांस होगा, दैट इज 4। तो सिंपल आपको फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट + 1 ना करके आपको करना है फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट + 1 मॉडुलस ऑपरेटर मैक्स। ओके, वो क्यों करना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज 3, सो दिस इज 3 + 1 मॉडुलस ऑपरेटर, व्हाट इज द साइज ऑफ एरे, दैट इज 5। ओके, सो दिस इज 4 मॉडुलस ऑपरेटर 5। अगर आप 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 4 आएगा। तो ठीक है, आपका फ्रंट यहाँ से नेक्स्ट पोजीशन पे चला गया, बट व्हाट अबाउट दिस वन, अगर आप इस 4 को डिलीट करेंगे तो इसके बाद सर्विस किसकी आएगी, 5 को डिलीट करने की आएगी बारी। सो आपको क्या करना होगा, अब ये स्टेटमेंट आपको हेल्प करेगा कि हमने ऐसा क्यों किया। नाउ फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट + 1, आई मीन टू से दैट 4 + 1 एंड मॉडुलस ऑपरेटर द साइज ऑफ एरे। ओके, सो हियर 5, ओके, अगर आप 4 को डिलीट कर रहे हैं तो इंडेक्स नंबर इज 4 + 1 दैट इज 5, 5 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 0। इट मींस अगर यहाँ से ये आइटम डिलीट होता है तो फ्रंट आगे जाएगा कौन सी पोजीशन के ऊपर, 0th लोकेशन के ऊपर पहुंचता है। ओके, तो स्टेटमेंट आपका लीनियर क्यू में क्या था, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट + 1, बट सर्कुलर क्यू में क्या होगा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट + 1 मॉडुलस ऑपरेटर मैक्स। ओके, अंडरफ्लो का कंडीशन इसमें सेम ही रहने वाला है कि अगर आप सारे आइटम यहाँ से डिलीट कर देंगे तो रेयर और फ्रंट आपके -1 होते हैं। A5 को भी आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, A5 को डिलीट करने के बाद आपका जो फ्रंट जो है A6 के ऊपर जाएगा, बिकॉज क्यू अप जो हुए थे आइटम्स जो है A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7, तो डेफिनेटली अब A6 को सर्विस मिलना चाहिए, सो A6 आपका सर्व होगा। नाउ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, सो डेटा स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलर क्यू, it is an organization of data elements in computer's memory plus allowed operation on that data elements. So a minimal set of useful operation on a circular queue includes the following operations. The first important operation is create a circular queue, which create a queue as an empty queue. सबसे पहले हम queue को create करते हैं. Now another important operation, add in a circular queue, okay, which insert the elements, the value to the rear end of queue and return the new queue. And another important operation is delete operation, so which remove the front element from the queue, okay, and return the resulting queue. So front, this is another operation which return the front elements of a circular queue, is empty, which return the true if queue is empty, otherwise it will return false. So data structure of circular queue, it is an organization of data elements in computer's memory and allowed operation, and these are important operations. So most important operations are add operation and delete operation. इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे।
Now the implementation of circular queue. There are two alternative methods to implement a circular queue in computer's memory. The first one is a static implementation. Static implementation is done by with the help of array. एंड डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन आप पॉइंटर और स्ट्रक्चर्स की हेल्प से और malloc फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं. नाउ ऐड ऑपरेशन इन सर्कुलर क्यू. सो ऐड ऑपरेशन इज यूज्ड टू insert an item into the circular queue. The size of queue is suppose maximum size इसका max है. However, before inserting an element, we must first check the overflow condition. So this is the operation, okay, and there are two parameters, the name of queue and what value we want to insert into it. So algorithm का जो सबसे पहला step होगा, step number 1, first check for overflow condition. Overflow का condition हम कैसे check करते हैं? हम यहाँ पे rear में 1 को add करते हैं, modulus operator max करते हैं. Now if this value is equal to front, then we can say that our circular queue is full, okay, then display queue is overflow. Now step number 2, if overflow की condition अगर satisfy नहीं होती है तो हम step number 2 के ऊपर जाते हैं. Now if value is the first element to be added, then set the rear and front both 0, okay, rear और front को आप 0 के साथ initialize करेंगे. Otherwise follow next step, step number 3, increase rear by 1. So rear को जब हम increase करेंगे तो simple rear is equal to rear plus 1 नहीं करना है, rear is equal to rear plus 1 modulus operator max. Now after that updated rear's location, we will insert the actual value. So insert desired value in new rearth position. So a of rear is equal to value, जो भी आपने यहाँ पे पैरामीटर पास किया था वो आपने updated rear location के ऊपर यहाँ पे insert किया. So this is overall add operation. Now in the same way, delete operation. The delete operation is used to delete the front element from the circular queue. However, before deleting the value, we must first check the underflow condition. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप delete कर रहे हैं और queue आपका empty है. So delete. So first सिर्फ एक parameter provide करना होगा, that is the name of circular queue. Now first check the underflow condition. This is your first step. If front is equal to -1, it means queue is empty, and then go back without doing anything. Now step number 2, save the front element into a variable, okay, that is a of front. आपने कहाँ पे store किया? Value के अंदर. Now step number 3, if this is the last item to be deleted from a queue, तो अगर मान लीजिए last item है और आप इसको delete करते हैं तो queue तो empty हो जाना है. So front and rear को आप set कर देंगे -1 के साथ में. Otherwise step number 4 को follow करेंगे, increment the front pointer by 1 position. तो front को भी आप कैसे increase करेंगे circular queue के केस में? Front is equal to front plus 1 modulus operator max, क्योंकि उसको round में फिर पूछे जाना है अगर वो अपनी maximum position तक पहुंचता है array के last index number के. So front is equal to front plus 1 modulus operator max. Okay, अब आपने जो भी टॉप मोस्ट आइटम को वैल्यू के अंदर स्टोर किया था इसको आप रिटर्न कर सकते हैं. देन रिटर्न द डिलीटेड आइटम टू फंक्शन जहां से आप इसको कॉल कर रहे हैं. तो लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू में डिफरेंस अगर हम टर्म्स एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो आपका लीनियर क्यू में सिंपल फ्रंट को हम अपडेट करते थे, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, मॉडुलस ऑपरेटर मैक्स नहीं लगाते थे. और इसी तरीके से इंसर्शन के केस में ऐड ऑपरेशन में भी रेयर को रेयर प्लस 1 मॉडुलस ऑपरेटर मैक्स लिखते हैं सर्कुलर क्यू के केस में, और लीनियर के केस में आप लिखते हैं रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1. नाउ कम टू द कोडिंग पार्ट, implementation of circular queue. Suppose the size is 5. Okay, this is a macro. Now the structure of queue, there are 3 elements: the front variable, rear variable, okay, and the third is memory, that is a of max. It means a of 5. So the nickname is queue. इसको आपने एक छोटा सा नाम दे दिया, that is queue. Now the first function is a create circular queue, जो हमने अभी बताया था. It is a organization of data elements in computers memory and allowed operation. तो allowed operation में सबसे पहला operation आता है create. So अगर आप queue को create करते हैं तो सिर्फ rear और front को आप initialize करेंगे -1 के साथ में.
So small q is a pointer. Which type of pointer? Structure type of pointer, because this is a structure. So q के थ्रू रेयर को अगर आप एक्सेस करेंगे या फ्रंट को एक्सेस करेंगे तो आप एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे. सो q एरो ऑपरेटर रेयर इज इक्वल टू -1 and q एरो ऑपरेटर फ्रंट इज इक्वल टू -1. सो दिस इज a सिंपल 2 लाइन फंक्शन. यहाँ पर अगर आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो रेयर और फ्रंट -1 के साथ इनिशियलाइज हो जाएगा. ओके, नाउ स्टार्ट विद मेन फंक्शन. Now this is a q. It is a variable. Which type of variable? Structure type of variable. Okay, so compiler create how many bytes of memory location? In case of turbo C, 2 for front, 2 for rear, and 10 bytes. 5 multiplied by the size of integer is 2. In case of turbo, that is a 10. So 10 plus 2 plus 2, that is a 14 bytes. So compiler create a 14 byte memory location somewhere in कंप्यूटर्स मेमोरी. ओके, बेसिकली स्टैक एरिया में क्रिएट होगा. नाउ क्रिएट अ सर्कुलर क्यू. अब आप सर्कुलर क्यू को क्रिएट करते हैं तो क्यू का आप एड्रेस यहाँ पे पास करेंगे. सपोज एड्रेस इज 5000, तो आपने 5000 को यहाँ पे पास किया. नाउ एट 5000 एड्रेस के ऊपर रेयर को आपने -1 इनिशियलाइज किया और फ्रंट को -1. तो यहाँ पे अपडेशन आपको मिलेगा दिस इज -1 एंड दिस इज -1. सो आफ्टर कॉलिंग ऑफ दिस वन, आप ये -1 हो गया, इट मीन्स क्यू आपका क्रिएट हो गया. Okay, so this is simple one operation. Now come to add operation. Add in a circular queue. So there are 2 parameters. The first parameter is a queue and another parameter what value we want to insert. So first check the overflow condition. So rear +1. अब rear को आप डायरेक्ट तो एक्सेस कर नहीं सकते, क्यू के थ्रू एक्सेस करेंगे, स्मॉल क्यू के थ्रू. तो स्मॉल क्यू एरो ऑपरेटर रेयर +1 मॉडुलस ऑपरेटर मैक्स इज इक्वल टू फ्रंट. देन आप लिख सकते हैं योर सर्कुलर क्यू इज फुल. ओके, दिस इज ओवरफ्लो कंडीशन एंड देन गो बैक विदाउट डूइंग एनीथिंग. नाउ इफ रेयर इज इक्वल टू -1, इट मींस आप पहला आइटम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं. तो इस मोमेंट के ऊपर आप पहला आइटम देते हैं तो रेयर और फ्रंट को आप इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ में. सो रेयर क्यू ऑफ रेयर इज इक्वल टू 0 एंड क्यू ऑफ फ्रंट इज इक्वल टू 0. अदरवाइज आप रेयर को अपडेट करेंगे, रेयर इज इक्वल टू रेयर +1 मॉडुलस ऑपरेटर मैक्स, लाइक दिस. ओके, नाउ आफ्टर दैट अपडेटेड रेयर लोकेशन, चाहे इफ पार्ट में रेयर को अपडेट करें चाहे आप एल्स पार्ट में रेयर को अपडेट करें, अपडेटेड रेयर लोकेशन के ऊपर आप डिजायर्ड वैल्यू को इंसर्ट करेंगे. सो दिस इज द ओवरऑल ऐड ऑपरेशन. नाउ कम टू द मेन पार्ट अगेन. क्रिएट क्यू. सो कंपाइलर क्रिएट 14 बाइट मेमोरी लोकेशन इन केस ऑफ टर्बो सी. नाउ आफ्टर दैट आप एम्प्टी क्यू को क्रिएट करते हैं तो रेयर और फ्रंट को आप -1 इनिशियलाइज करेंगे जो पिछला फंक्शन था. सो दिस इज -1 एंड देन ऐड ऑपरेशन. सो अब इस क्यू में आप ऐड करते हैं विच वैल्यू, दैट इज 17. तो रेयर इज -1, आप यहाँ पर जाएंगे तो चेक होगा दिस इज ओवरफ्लो की कंडीशन. -1 + 1 दैट इज 0. ओके, 0 को आप 5 से डिवाइड करेंगे बिकॉज मैक्स इज 5, तो 0 ही रहेगा. बट फ्रंट का वैल्यू कितना, दैट इज -1, तो मैच नहीं होगा, तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. नाउ कम टू द सेकेंड स्टेटमेंट एंड द सेकेंड स्टेटमेंट रेयर इज -1. सो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा सो रेयर आपका 0 इनिशियलाइज होगा, फ्रंट भी 0 इनिशियलाइज होगा. तो आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखेंगे दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. नाउ कम टू दिस वन. सो a of rear, what is the value of rear, that is 0. This is 0. So a of 0 के ऊपर आप अपनी डिजायर्ड वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, दैट इज 70. तो a of 0 के ऊपर आपका वैल्यू आ गया 70. सो फंक्शन कॉलिंग इज ओवर, आपका कंट्रोल वापस आएगा. नाउ सेकेंड टाइम अगर आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपने फिर से ये 5000 एड्रेस यहाँ पे भेजा. ओके, और इस पर्टिकुलर एड्रेस पे अब देखिए रेयर का वैल्यू कितना है. सो दिस इज नॉट मैच बिकॉज दिस इज 0 + 1. ओके, 1 हो गया. 1 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, बट फ्रंट का वैल्यू 0, तो मैच नहीं होगा. और सेकेंड इफ पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज रेयर इज 0 और 0 इज नॉट इक्वल टू -1. ओके, तो एल्स पार्ट में जाएंगे यानी रेयर को आप एडवांस करेंगे. सो राइट नाउ फ्रंट एडवांस नहीं होगा, रेयर आपका बढ़ेगा. ओके, सो दिस इज 0 + 1 डिवाइडेड बाई 5, सो इट विल बी 1. तो आप यहाँ पे देखेंगे आंसर आपका रिफ्लेक्शन 1 मिला. नाउ अपडेटेड रेयर लोकेशन के ऊपर वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, दैट इज a of 1 के ऊपर. सो दिस इज a of 1 और वैल्यू क्या डालते हैं, दैट इज 11. सो 11 आपका इस पोजीशन के ऊपर आता है. ओके, सो अब जितनी भी बार आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे फर्स्ट इफ पार्ट और सेकंड इफ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ एल्स पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा. व्हाई, बिकॉज रेयर का वैल्यू 1 हो चुका है, -1 नहीं है.
और यहाँ पे भी कंडीशन मैच नहीं होगी। दिस इज 1 + 1 दैट इज ए 2, और 2 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 होगा, और फ्रंट का वैल्यू 0 है जो कि मैच नहीं होता। नाउ कम टू दिस एल्स पार्ट, रेयर को एडवांस किया आपने, सो रेयर इज इक्वल टू रेयर +1 दैट इज ए कितना हो गया, दैट इज ए 1 + 1 दैट इज 2, और 2 को आपने डिवाइड किया तो आपने देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन 2 मिला। ओके, सो अपडेटेड रेयर लोकेशन के ऊपर यानी a ऑफ 2 के ऊपर अपनी वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, और वैल्यू आपकी क्या थी, दैट इज 5 आपका इस पोजीशन पे आएगा। ओके, इन दिस सेम मैनर आप आगे जाएंगे 23 नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर रेयर एडवांस होगा, 3 से बढ़ के 4 होने वाला है क्योंकि, और यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट होगी दैट इज 7। इसके बाद अगर आप कॉल करेंगे तो क्या होने वाला है, सपोज आई वांट टू इंसर्ट 56। ओके, तो रेयर आपका एडवांस होगा, पहले ओवरफ्लो का कंडीशन चेक करिए, दिस इज 4, सो 4 + 1 5 डिवाइडेड बाई 5 तो रिमाइंडर आएगा 0, और फ्रंट भी 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, सो Q इज ओवरफ्लो, तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा Q इज फुल। ओके, सो दिस इज द इंसर्शन जो एड ऑपरेशन है। नाउ कम टू द डिलीट ऑपरेशन। I want to delete something from a circular queue, so a return type is int and the name of queue is small q. Okay, मैं जो एलिमेंट डिलीट करना है उसको y के अंदर स्टोर करेंगे। फर्स्ट चेक द अंडरफ्लो कंडीशन, इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 देन q इज एम्प्टी, अंडरफ्लो का कंडीशन है, एंड रिटर्न -1 -1 इज ए मार्कर, अगर हमारे पास -1 आता है फंक्शन से कॉल होने के बाद में तो हम समझ लेंगे हमारा q जो है ऑलरेडी एम्प्टी है। Now first store the topmost element in y variable, so front value definitely जब आप डिलीट करेंगे तो फ्रंट वैल्यू डिलीट करेंगे, तो a ऑफ फ्रंट को आपने y के अंदर स्टोर किया। Now चेक कहीं ऐसा तो नहीं ये लास्ट आइटम है, तो रेयर और फ्रंट आपस में इक्वल है, और अगर ये आइटम डिलीट होता है तो रेयर और फ्रंट आपके -1 हो जाएंगे बिकॉज q जो है आपका एम्प्टी हो जाएगा। Now at that moment रेयर will be equal to -1 and front is also equal to -1, right? ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, कई आइटम है, तो आपका फ्रंट सिर्फ अपडेट होगा। नाउ कम टू द एल्स पार्ट, एट दिस मोमेंट फ्रंट को आप एडवांस करेंगे, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 मॉडुलस ऑपरेटर मैक्स। ओके, नाउ आफ्टर दैट रिटर्न द डिलीटेड आइटम दैट इज, सो आप इस आइटम को यहाँ से डिलीट कर देंगे। ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन, सो आपने एक वेरिएबल लिया q, सो कंपाइलर क्रिएट 14 बाइट मेमोरी लोकेशन, आफ्टर दैट आपने क्रिएट फंक्शन को कॉल किया तो रेयर और फ्रंट -1 इनिशियलाइज होंगे, और एड ऑपरेशन किया हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5, सो यहाँ पे 1 बाई पहले 0 इनिशियलाइज होगा, फिर आपका 17 एंड देन 11 एंड देन 5, ओके, एंड देन 23 यहाँ पे अपडेट होता जाएगा। अब यहाँ पे 23 एंड देन अपडेट होगा, एंड दिस इज 7। नाउ डिलीट, सो somebody want to delete something from a circular queue, तो definitely सबसे पहले कौन लगा था क्यू में, 17, तो आप डिलीट ऑपरेशन को कॉल करेंगे और चेक करेंगे अंडरफ्लो, सो फ्रंट इज 0 इज नॉट इक्वल टू -1, तो इफ पार्ट पे एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो आप फ्रंट वैल्यू को, आई मीन टू से दैट a ऑफ 0 को पहले y के अंदर स्टोर करेंगे, a ऑफ 0 इज 17 y के अंदर जाता है। नाउ चेक कि लास्ट आइटम तो नहीं है, नो, बिकॉज दिस इज 0 एंड दिस इज 4, 0 इज नॉट इक्वल टू 4, फ्रंट एडवांस होगा, फ्रंट आपका हो जाएगा 1। ओके, 0 + 1 दैट इज 1, और डिवाइडेड बाई 5 तो रिमाइंडर 1 ही रहेगा, एंड रिटर्न द डिलीटेड आइटम, तो आपका 17 यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ओके, जब x1 में स्टोर हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट, आपने फिर से आप डिलीट ऑपरेशन को कॉल किया, सो डेफिनेटली अब फ्रंट कौन सी पोजीशन पे है, ओके, फर्स्ट इंडेक्स नंबर के ऊपर है, सो 11 आपका यहाँ से डिलीट होगा। ओके, उसके बाद अगर आप अपडेट करेंगे तो डिलीट ऑपरेशन, तो यहाँ पे फ्रंट अपडेट हो गया, इट मींस फ्रंट आपका इस पोजीशन के ऊपर है। नाउ 5 इज डिलीटेड फ्रॉम योर क्यू। ओके, तो इस तरीके से एल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। नाउ कम टू एड ऑपरेशन, अब हम इसमें फिर से ऐड करना चाहते हैं, तो अगर हम इंसर्शन करेंगे तो आप रेयर आपका एडवांस होगा, रेयर इज इक्वल टू रेयर +1, राइट नाउ रेयर का वैल्यू कितना है, दैट इज 4, एंड 4 + 1 डिवाइडेड बाई 5, और रिमाइंडर कितना आएगा, दैट इज 0, तो रेयर जो है वो घूम के कहां पे जाएगा, 0th लोकेशन के ऊपर, सो रेयर विल बी हियर। ओके, रेयर का वैल्यू आपका कितना होगा, दैट इज 1, बेसिकली दिस इज 0, सॉरी दिस इज 0। ओके, सो 0th लोकेशन के ऊपर इससे पहले आपका रेयर का वैल्यू कितना था, 4 था, और 4 से बढ़ के कितना हो गया, दैट इज 0।
सो जीरोथ लोकेशन के ऊपर आपका इंसर्शन हुआ, दैट इज 66 जो आपने यहाँ पे डिमांड किया था. सो 66 विल बी हियर. नाउ वंस अगेन इंसर्शन, तो डेफिनेटली रेयर अपडेट होगा, तो जीरो से बढ़ के रेयर पहले 1 होगा, और जो आइटम आप देते हैं दैट इज 77 वो आपका यहाँ पे इंसर्ट होगा लाइक दिस. नाउ आई वांट टू डिलीट वंस अगेन. अब आप डिलीट करेंगे. सो 23 फ्रंट आपका इस पोजीशन के ऊपर है, बिकॉज फ्रंट कहाँ पर है, दैट इज हियर. दिस वाज बेसिकली 3. ओके, नाउ आफ्टर दैट जब ये फ्रंट आपका अपडेट होने के बाद में फ्रंट का वैल्यू फिर आएगा 4. ओके, सो नाउ अनदर आइटम डिलीट करते हैं, तो दैट इज 7. सो 7 यहां से डिलीट हो जाएगा. नाउ ऑपरेशन, आप फिर से एक आइटम को डिलीट करते हैं, तो अब आपका 66 डिलीट होगा, बिकॉज फ्रंट कौन सी पोजीशन के ऊपर है, जीरोथ लोकेशन के ऊपर है. ओके, सो पहला कंडीशन मैच नहीं होगा, दूसरा कंडीशन मैच नहीं होगा, एल्स पार्ट में जाएंगे, फ्रंट आपका एडवांस हो जाएगा, तो फ्रंट का वैल्यू 1 हो गया, यानी ऑन 16 इज डिलीटेड फ्रॉम योर सर्कुलर क्यू. ओके, नाउ दिस इज द लास्ट आइटम. लास्ट आइटम के केस में अगर आप फिर से डिलीट करते हैं, ओके, आपने फिर से डिलीट ऑपरेशन को कॉल किया X7 में, सो चेक where is front is not equal to -1. okay, front and rear are equal. yes, front and rear are equal. तो in this moment आप rear और front को इनिशियलाइज करेंगे -1 के साथ में. ओके, और जो भी टॉप मोस्ट वैल्यू को आपने y के अंदर स्टोर किया था दैट इज 77, उसको आप रिटर्न करेंगे लाइक दिस. ओके, नाउ आफ्टर दिस somebody want to delete once again. तो अब आपको क्या होगा, क्योंकि rear और front तो -1 हो गए, आप अगर फंक्शन को कॉल करेंगे तो फ्रंट इज इक्वल टू -1 और आपका मैसेज आएगा Q is empty and then go back without doing anything. So Q is empty. Okay, so this is the delete operation. तो ये था आपके add और delete operation. यहाँ पे हमको इतना ही एक्सप्लेन करना था. So thank you so much.